ایک تصور پایا جاتا ہے۔ بڑی توجہ سے میری اس تمہیدی گفتگو کو سن کر میں پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور قرآن مجید سے اس بات کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور بعد ازاں احادیث مبارکہ کا ہم جائزہ لیں گے۔ اور وہ یہ کہ بات یہ پھیلائی جاتی ہے عام طور پر کہ شاید استغفر اللہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے درمیان مسئلہ فدق کی وجہ سے آپس میں معاذ اللہ کوئی کلیش تھا، کوئی ناراضگی تھی، اور ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق اچھا نہیں تھا۔ اور معاذ اللہ استغفر اللہ اس واقعہ کو بنیاد بنا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات اقدس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یوں معاشرے کے اندر دو طبقات بن گئے ہیں، اور سوشل میڈیا پر نوجوان نسل کو بہت بری طریقے سے بہکایا جا رہا ہے، اور ان کے دلوں میں ان مبارک ہستیوں کے بارے میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خطا پر تھے، اور ایک طبقہ وہ کہتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ جب سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فدق کی وراثت کا حق مانگ رہی تھیں تو وہ معاذ اللہ خطا پر تھیں۔ حاضرین محترم، میں آپ کے سامنے بڑے ہی آسان انداز میں، یہ بات بڑی مشکل ہے سمجھانا، مگر کوشش کروں گا کہ بہت آسان انداز تک آپ تک اور نوجوان نسل تک اور یوٹیوب کے ذریعے اور سوشل میڈیا چینلز کے ذریعے سننے والے نوجوانوں تک یہ بات پہنچا سکوں۔ حاضرین محترم، بات یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں خیبر کے نزدیک کچھ زرعی علاقہ تھا۔ بولیے کس کے نزدیک؟ خیبر کے نزدیک ایک زرعی علاقہ تھا، اور وہ علاقہ فدق کہلاتا ہے۔ اچھا، وہاں پر زرعی سارا باغات تھے، کھیت تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ باغ اور وہ زرعی علاقہ مال فے کے طور پر ملا تھا۔ ایک دفعہ ذرا لفظ بول لیں، میں آپ کو پھر سمجھا دیتا ہوں کس کے طور پہ ملا تھا۔ مال فے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوا ہوگا، مال غنیمت۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی کافروں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اور جنگ کے نتیجے میں جو مال کافر چھوڑ کر بھاگ جائیں اور جو مال مسلمانوں کو ہاتھ لگے، اس مال کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ مال غنیمت۔ اور اب آپ نے دوسرا لفظ سنا، مال فے۔ یہ مال فے کیا ہوتا ہے؟ مسلمان جنگ کے لیے جاتے ہیں، مگر وہ لشکر دیکھ کر، کیا مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر کفار جنگ کرنے سے انکاری ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے کچھ لے لو اور ہمیں معاف کر دو اور ہمیں چھوڑ دو، ہمارے ساتھ جنگ نہ کرو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیبر کے اندر پائے جانے والا یہ باغ فدق اور یہ فدق کی ساری زمینیں اس اعتبار سے ملی تھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود گئے جنگ کرنے کے لیے، مگر آگے سے ان پر ایسا رعب طاری ہوا کہ ان سارے یہودیوں نے اور ان سارے مشرکین اور کفار نے جنگ کرنے سے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، ہم سے کچھ لے لو اور ہماری جان بخشی کر دو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہاں ایک معاہدہ ہوا، اور معاہدے کے نتیجے میں یہ سارا زرعی علاقہ مسلمانوں کے سپرد ہو گیا۔ حاضرین محترم، اب بات کو بڑے دھیان سے، میں بہت ہی کوئی زیادہ زور جذبے اور جوش سے آپ کو نہیں سمجھا رہا، بڑے سادہ انداز میں سمجھا رہا ہوں تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ بات ذہن میں رہے، اور ایسے موضوعات پر روز روز بات بھی نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس عقیدے کو بیان کرنے پر حق بجانب ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل کو، جیسے ہر مسلک والا
ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا اپنے عقائد کا اور نظریات کا پرچار کرتا ہے، تو ہمارے جو عقیدے ہیں ان کے نظریات اور عقائد کا احترام کرتے ہوئے اور انہیں کچھ نہ کہتے ہوئے ہم اپنا عقیدہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت سے یہ بات سمجھ میں آئی۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ زرعی زمینیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئیں تو مال غنیمت، یاد رکھیں کیا، مال غنیمت، اس کو جب تقسیم کیا جاتا ہے تو جس کو مال ملتا ہے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، لیکن مال فے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، بلکہ یہ سارا مال ریاست کے ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ بولیے کس کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے؟ ریاست اور حکومت کی ذمہ، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ریاست کے ہیڈ تھے، اسلامی ریاست کے ہیڈ تھے۔ ان کے بعد سیدنا صدیق اکبر بنے، حضرت عمر فاروق بنے، حضرت عثمان غنی بنے، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ بنے، اور بعد میں وہ باغ فدق وہ ریاست کے پاس تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ، یعنی ریاست کے حاکم کے طور پر اس میں سے جتنے بھی مال پیسہ آتا اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیگر طبقات میں، محتاجوں میں تقسیم فرما دیتے، پھر اجتماعی ضرورت میں تقسیم فرماتے، اور جتنا پیسہ آتا اس کو اہل بیت اطہار میں بھی تقسیم کرتے۔ یعنی اس میں سے آنے والا پیسہ وہ صرف آل پاک کو نہیں جاتا تھا۔ یہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ بتا رہا ہوں، یاد رکھ لے۔ یعنی یہ میں کوئی ایسی کہانی یا تاریخی کتاب یا کسی حدیث کی کتاب کا حوالہ بھی نہیں دے رہا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو 3 کاموں پر اس پیسے کو خرچ کرتے۔ اس کا ذکر قرآن میں ہے 3 جگہوں پر کہ آقا علیہ السلام کیا کرتے، اس پیسے میں سے محتاجوں اور غریبوں کو دیتے، اس میں سے ریاست کے جتنے فلاحی کام ہیں، مارکیٹس بننی ہیں، سکول بننے ہیں، بازار بننے ہیں، مسجد کی تعمیر ہونی ہے اور درسگاہیں بننی ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیسے میں سے وہاں بھی خرچ کرتے، اور پھر اسی پیسے میں سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل پاک کو اور اہل بیت اطہار کو بھی عطا فرماتے۔ اب ہوا یہ کہ جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، بولیے کیا، آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے یہ سمجھا کہ یہ جو باغ فدق تھا یہ شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت اور ملکیت میں تھا، لہٰذا آپ آئیں۔ جب پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تو انہوں نے آ کے آپ سے سوال کیا کہ میرے بابا کی وراثت مجھے دی جائے۔ اور یاد رکھ لیں یہ سوال صرف سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے نہیں کیا، بلکہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ تمام ازواج نے بھی، یعنی جو آقا علیہ السلام کی اس وقت 9 ازواج حیات تھیں، ان 9 کی 9 ازواج نے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ وہ جو باغ فدق کا آتا ہے تو وہ آقا علیہ السلام کی ملکیت تھا، لہذا اس میں سے ہمیں حصہ دیا جائے، اس میں سے ہمیں حصہ دیا جائے۔ تو جب یہ سوال ہو گیا تو اب یہاں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سوال کر رہی تھی تو ان کا یہ سوال کرنا غلط تھا۔ یاد رکھ لیں نہیں، ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ان کی ذات سے کوئی غلط جملہ نکل ہی نہیں سکتا۔ جب سوال کر رہی تھی تو وہ غلطی پر، وہ خطا پر نہیں تھی، ان کا سوال کرنا بھی حق تھا کہ بھائی میرے بابا کی زمینیں تھی، اس میں سے مجھے وراثت دی جائے۔ اب بدلے میں جب یہ سوال سنا تو میں نے پہلے بتایا یہ سوال صرف سیدہ نے نہیں کیا تھا، ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا تھا۔ اچھا، اب جب کیا تو بدلے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
जवाब इरशाद फरमाया, और ये जवाब बुखारी में आया कि सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आप जिन ज़मीनों की विरासत और पैसा और वो तलब कर रही हैं कि विरासत में हमें वो हमारे ज़िम्मे कर दिया जाए, हमें अता कर दिया जाए, तो मैंने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से सुना है कि हम अंबिया की विरासत तकसीम नहीं होती, बल्कि हम जो छोड़ कर जाते हैं वो उम्मत के लिए सदका होता है। अंबिया की विरासत नहीं होती, जो हम छोड़ के जाते हैं वो सदका होता है। अब सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा ने ये बात सुनी, सुनकर आप वापस घर तशरीफ ले आई, बात खत्म हो गई। मगर बदकिस्मती से फिरका वारियत की भीड़ चढ़ाने वालों ने इस उम्मत पर और उम्मत के नौजवानों पर ये जुल्म किया। भाई ये सवाल सिर्फ सैयदा ने तो किया ही नहीं, सैयदा ने भी किया, उम्महातुल मोमिनीन ने भी किया, उनको भी आपने यही जवाब दिया, सैयदा फातिमा ज़हरा को भी यही जवाब दिया, बात खत्म हो गई। क्योंकि ये हदीस याद रख लें, सिर्फ ये हदीस मौला हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान नहीं की, कि बाज़ ज़हनों में ये भी गलत फहमी डाली जाती है कि ये हदीस सिर्फ हजरत अबू बकर नहीं सुनी हुई थी कि हम अंबिया की विरासत नहीं होती, जो होता है वो सदका होता है। ये भी ज़हनों में बात डाली जाती है कि ये रिवायत सिर्फ सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला, नहीं, यही रिवायत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बयान की, यही हदीस सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बयान की। और आप हैरान हो जाएंगे, यही हदीस मौला कायनात मौला अली अल मुर्तज़ा ने भी बयान फरमाई, और सिर्फ बयान ही नहीं फरमाई बल्कि अपने खिलाफत के दौर में इस हदीस पाक पर खुद अमल भी किया कि जब मौला अली अल मुर्तज़ा का जमाना आया तो उस वक्त भी ये बाग़े फदक का पैसा सैयदा फातिमा ज़हरा और आपकी आल को नहीं जाता था, तब भी ये रियासत के पास ही था। और जिस तरीके पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर इसके 3 हिस्से करते, और उससे पहले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसके हिस्से करते, वैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी किए, वैसे हजरत उमर फारूक के दौर में भी हुए, वैसे हजरत उस्मान गनी के दौर में भी हुए, वैसे ही मौला कायनात मौला अली अल मुर्तज़ा के दौर में भी हुए। तो जब अगर मौला कायनात मौला अली अल मुर्तज़ा ये समझते कि माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़्यादती की है और विरासत का हक सैयदा फातिमा ज़हरा को नहीं दिया, तो अकल में आने वाली बात है सादा सी, हजरत मौला अली अल मुर्तज़ा से ज्यादा सैयदा के करीब कौन था? आप भी सबसे करीब थे। आप कह देते कि भाई पहले माज़अल्लाह से आती होती रही है, अब मैं सैयदा को उनका हक दे रहा हूं। और अगर मौला कायनात मौला अली अल मुर्तज़ा ने ऐसा नहीं किया तो ये बात वाज़े तौर पर इस बात पर दलालत करती है कि मौला कायनात भी इस हदीस पाक को सच्चा और यकीनी समझते थे। हाज़रीन मोहतरम, ये बाज़ के अदवार में भी ऐसे होता रहा। अब बात यहां पर यह समझाना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग तो वो हो गए जो इस सवाल करने पर, मुझे ईमानदारी से सच्ची बताएं, अब तक मैंने जितनी बात की आपको समझ में आ गई है जी? अच्छा, अब जरा आगे चलें। मैं जो अगला नुक्ता बड़ा हम समझाना चाहता हूं, टाइम बहुत शॉर्ट होता है और थोड़े से टाइम में ये बड़ा तवील मौजू है, मगर अब मैं असल बात पर आना चाहता हूं। जहनों में इस वाकया को बुनियाद बनाकर बाज लोग ये कहते हैं कि जब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सवाल कर रही थी तो माज़अल्लाह वो खता पर थी, और उसके बदले में जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये हदीस सुनाई तो माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये हदीस ही आपने खुद घड़ी और खुद से सुना दी कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम अंबिया की विरासत तकसीम नहीं करते, हम जो छोड़ते हैं वो सदका होता है। नहीं, जब सवाल कर रही थी तो वो भी सच्ची थी, और जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने यह हदीस सुनाई तो यह हदीस भी जाती न थी बल्कि सच्ची मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान था। इसलिए कि याद रखें, तमाम मुसलमानों में 3 तरह के तबकात हैं। अब मेरा असल मौजू शुरू हो गया। यह अभी तक मैंने आपके सामने इसकी बेस रखी, अब मैं आपके सामने अर्ज करने लगा हूं कि सच्ची फातिमा ज़हरा थी
या सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे, तो पहला जुमला तो ये ज़हन में रख लें कि ये दोनों ही सच्चे थे। ऊंचा बोलिए, क्या दोनों ही सच्चे थे? वो एक सवाल था, इधर जवाब आ गया, बात खत्म। उसके बाद अमल भी वैसे होता रहा जैसे ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में होता रहा, और इस पर कभी उम्मत में इख्तिलाफ पहले नहीं रहा। ये पेट के चक्कर में, पैसों के चक्करों में, डॉलरों के चक्करों में हुलिया बिगाड़ के, कुरान और सुन्नत को पीछे रख के, तारीख की मन गढ़ंत किताबों को सामने रखे, यूं उम्मत के अंदर फिरका वारियत पैदा कर दी गई। और एक तबका सिर्फ आले पाक को मानता है, एक तबका सिर्फ सहाबा किराम को मानता है। नहीं, ये दोनों मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलदस्ते के फूल हैं। हमने एक हाथ में दामन अहले बैत को रखना है, एक हाथ में दामन सहाबा किराम को रखना है। इन दोनों की पैरवी हक है, इन दोनों को मानना हक है, इन दोनों की हर बात हक होती है, कोई भी इनमें से खता पर। अच्छा, आओ अब जरा कुरान से पूछते हैं। मैंने आपके सामने पहला जुमला यह बोला कि मुसलमानों में 3 तरह के तबकात हैं जिनका कुरान ने जिक्र किया। फरमाया पहला तबका वो लोग हैं जो अल्लाह से हिदायत मांगते हैं। बोलिए क्या? जो अल्लाह से हिदायत, हम जैसे हिदायत मांगते हैं। दूसरा तबका वो होता है जो खुद हिदायत याफ्ता होते हैं मगर वो हिदायत देते हैं, बयान करते हैं, लोगों को हिदायत की तरफ बुलाते हैं, उलमा। एक तबका वो हो गया जो हिदायत मांगते हैं, एक वो हैं जो हिदायत बताते हैं, देते हैं, समझाते हैं। और तीसरा तबका जिसको कुरान ने इन तीनों तबकात को बयान किया, और हम हर नमाज में उन तीनों तबकात का जिक्र करते हैं। मैं आपके सामने अर्ज करता हूं, तीसरा तबका वो होता है कि जो हिदायत मांगते नहीं, सिर्फ हिदायत देते नहीं, बल्कि उनका वजूद ही खुद हिदायत और हक होता है। वो जिधर चलते हैं हक उनके साथ चलता है, वो जो बोलते हैं हक वही होता है, वो जो कहते हैं वही हक होता है, जिधर देखते हैं वही हक होता है, जिधर से मुंह फेर लेते हैं वो हक नहीं होता, जिससे मुंह मोड़ लेते हैं वो हक नहीं होता। हाज़रीन मोहतरम, इस तबके का जिक्र पता है कहां आया? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधी राह दिखा। ये हम हर नमाज में दुआ करते हैं या नहीं करते? हम वो हैं जो हिदायत तलब करते हैं। वाज़े तौर पर एक तबके का जिक्र हो गया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और इसी में दूसरे तबके का भी जिक्र है जो हिदायत देता है। साफ जाहिर है जब हम मांग रहे होते हैं तो ये हिदायत का पैगाम दूसरों तक भी पहुंच रहा होता है। एक वाज़े जिक्र एक तबके का इसके अंदर मौजूद है, एक तबके का जिक्र इशारातन मौजूद है, और मैंने तीसरा तबका जिसका जिक्र किया कि वो हिदायत सिर्फ मांगते नहीं हैं, हिदायत सिर्फ बयान नहीं करते, बल्कि कुरान ने कहा उनका वजूद ही खुद हक होता है। उनका जिक्र कहां आया? फरमाया इसी से आगे पढ़ो, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तीसरा तबका भी होता है, और वो खास लोग होते हैं, और वो ऐसे होते हैं कि वो मेरे इनाम याफ्ता बंदे होते हैं। वो सिर्फ हिदायत मांगने वाले नहीं होते, हिदायत बताने वाले नहीं होते, बल्कि उनका वजूद और उनकी हर बात खुद में हक और सच होती है। सैयदा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जात खता पर नहीं हो सकती, इसलिए कि इनका ताल्लुक हिदायत मांगने वालों से नहीं है, इनका ताल्लुक सिर्फ हिदायत बताने वाले तबके से नहीं है, इनका ताल्लुक उस तबके से है कि जो खुद ही हिदायत होते हैं। सैयदा फातिमा भी हिदायत की अलामत है, फारूक आजम हो या सैयदना सिद्दीक़ अकबर हो, वो भी हिदायत और सच और सवाब की अलामत है। हाज़रीन मोहतरम, जैसा कि ये एक जिक्र का, एक तबके का जिक्र हुआ ना, इसी तरीके से आप देखिए एक और मुकाम पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 तबकात का जिक्र किया।
اب بڑی توجہ سے، مجھے امید ہے کہ اب تک کی بات آپ بڑی توجہ سے سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے وہ واقعہ رکھا، پھر آپ کے سامنے بتایا کہ اس میں جو ذات جن کی آپس میں لڑائی کروائی جا رہی ہے معاذ اللہ، جن کے درمیان کلیش، یہ ہے کس لیول کے لوگ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں یا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ان میں سے کوئی بھی خطا پر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں حق ہیں۔ بولو کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ حق والے طبقے، یہ خود سچے ہیں۔ اچھا جب یہ سچے ہیں تو آؤ ذرا، کیا ان تین طبقات کا ذکر کہیں اور بھی ہوتا ہے؟ جب علم والوں کی بات آئی، علم والوں کی، تو اللہ رب العزت نے علم والوں سے متعلق بھی تین طبقات کا ذکر کیا اور فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر۔ سورہ فاطر آیت نمبر 32، بڑی ایمان افروز، ذرا توجہ سے میں نے آپ کے سامنے فدق کا واقعہ رکھا اختصار کے ساتھ، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اس واقعہ میں آنے والی دونوں ہستیاں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ذاتیں یہ قرآن کے بیان کیے گئے تین گروہوں میں سے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو ہدایت مانگنے والے نہیں ہیں صرف، جو ہدایت بتانے والے نہیں ہیں صرف، بلکہ ان کا وجود سر سے پاؤں تک حق کی علامت ہے۔ اب ذرا دیکھو، جیسا کہ اللہ رب العزت نے جب علم والوں کی بات کی اور جب قرآن کے وارثوں کی بات کی تو تین گروہوں کا ذکر کیا، فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ قرآن کے وارثوں میں ایسے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم، یعنی ہدایت طلب کرنے والے، وہی ذرا تین طبقے ذہن میں رکھیں، ہدایت طلب کرنے والے۔ دوسرا فرمایا منہم مقتصد، دوسرے وہ ہیں جو درمیانے درجے والے ہیں، یعنی اپنی جانوں پر ظلم بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی بجا لاتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ فرمایا سابقم بالخیرات، تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو نہ گناہ کرتے ہیں، بولیے کیا، نہ گناہ کرتے ہیں، نہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، نہ ایسے ہیں کہ کبھی گناہ کر لیا اور کبھی ہدایت کا کام کر لیا۔ فرمایا تیسرا طبقہ وہ ہے جو سابقم بالخیرات، ہر نیکی کے کام میں سب سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، جب قرآن کی ان آیات کو پڑھا اور ادھر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات اقدس کو دیکھا، ادھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مقام فنائیت و معیت کو دیکھا، تو ایک ہی بات بڑی واضح سمجھ میں آتی ہے کہ ان دونوں ہستیوں کا یا ان دونوں ہستیوں میں سے کسی ایک کا خطا پر ہونا، غلطی پر ہونا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا تعلق اس گروہ سے ہے جس کو قرآن سابقم بالخیرات کہہ کر پکار رہا ہے۔ سابقم بالخیرات کہہ کر پکار، سابقم بالخیرات کہہ کر پکار رہا ہے۔ بھئی کیوں نہ پکارے؟ آؤ ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے سکپ کرتے ہوئے، مگر موضوع ترتیب سے چل رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں لگنے دوں گا کہ میں نے کیا چھوڑا ہے۔ اب بات قرآن سے، آؤ یہ مقام کیسے ملا کہ یہ دونوں ہستیاں ہی حق پر ہیں؟ آؤ ذرا، اب ویسے تو ابھی تک میں نے جتنی بات کی یہ ایمان کی بات کی کہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ حق پر ہیں، لیکن آؤ ایمان کے ساتھ اب دلیل بھی دے دوں۔ کیا؟ ایمان کے ساتھ اب دلیل بھی دے دوں۔ ذرا پہلی دلیل سنیے، ہستیاں کتنی ہیں جی اس میں؟ دو، سیدہ کائنات اور حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ کہنا کہ معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر خطا پر تھے اور انہوں نے یہ بات اپنی طرف سے کہی، نہیں، صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد نے اس حدیث کو روایت کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، میں نے پہلے بھی جملہ بولا کہ یہ جو آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی اور ایسے صحابی جن کی صحابیت کا درجہ خود قرآن نے بڑھایا،
हर कोई सहाबी बना तो फरमाने रसूल से बना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो सहाबी हैं जिनकी सहाबियत की गवाही खुद कुरान देता है। मैं आगे आ रहा हूं, जरा तवज्जो रखिएगा हाजरीन मोहतरम। ये जो मैंने कहा कि ना ये खता पर, ना सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो खता पर, फिर क्या इनका अगर दोनों खता पर नहीं है तो फिर इसका मतलब है ये दोनों हक हैं। तो ये हक कैसे हैं? अब जरा पहली हदीस सुनो, आपने सुन रखी है, ये दोनों हक कैसे हैं? सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी ज़ात अक़दस क्या है? पहले जरा एक सवाल का जवाब दीजिए, रसूल पाक का वजूद हक है या नहीं है? बोलिए, हक है या नहीं है? हक है 100%। बल्कि फरमाया मन रानी फ़क़द रअल हक, जिसने खुदा को देखना हो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखे, इस कदर आला। तो आपका वजूद हक, तो आपके वजूद का हिस्सा भी हक होगा या नहीं? बोलो ना यार सुभान अल्लाह। अब मैं जरा आसान गुफ्तगू में, आसान पैराए में आ गया। आपका वजूद भी हक, तो कौन है आपका वजूद? फरमाया फातिमा बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म और जान का टुकड़ा है। सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कैसे माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह खता पर हो सकती हैं? जब आप फदक का हक मांग रही थी तो वो सच्चाई का पैकर थी, सिद्दीक़तुल कुबरा थी, सिद्दीक़तुल कुबरा। और निसाइल आलमीन है। भाई जिस जात के लिए ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के मुसल्ले पर खड़े हो जाएं वो जात हक नहीं है तो और क्या है? उठ के खड़े हो, मुस्तफा पाक तो जो बोले वो हक होता है, तो जिसके लिए खड़े हो जाएं वो हक नहीं है? जिसके लिए उठकर खड़े हो जाएं। अच्छा सिर्फ वो ही नहीं खड़े हुए, दुनिया में भी सब खड़े होते रहे, कयामत आ जाएगी। बोलिए क्या? कयामत आ जाएगी। हजरत आदम से लेकर आखिरी इंसान तक हर कोई खड़ा होगा, आवाज आएगी गुद्दू अबसारकुम या अहले माशर, ए अहले माशर अपनी निगाहें झुका लो, हत्ता तमुर्रा फातिमतु ज़हरा, अपनी निगाहें झुका लो, सैयदा फातिमतु ज़हरा की सवारी का गुजर होने वाला है। जिनको दुनिया में इज्जत इस सतह की मिले कि आमिना का लाल खड़ा हो जाए। ये आमिना के लाल वो हैं जिनकी मस्जिद अक्सा में आमद हुई तो कुल अंबिया उठ के खड़े हो गए। जिनके लिए अंबिया खड़े हो वो जात सैयदा फातिमा तो ज़हरा के लिए खड़ी हो रही है। तो वो जब सवाल कर रही थी तो माज़अल्लाह खता पर थी नहीं, वो हक पर थी, वो उनका सवाल करना हक था। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने जो तबका जिक्र किया ना कि बाज लोग ऐसे होते हैं जो खुद हक होते हैं, इस पर मैंने कुरान से दलील दी। अब जरा हदीस से भी सुन लो, हदीस से भी सुन लो। सिर्फ सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा ही हक नहीं है, ये जो चादर के नीचे आ गए थे ना, बोलिए क्या? चादर के, जिनको खास पूरी अहले बैत में से जिनको 5 को 4 को खास मुकाम दिया था, उनमें एक जात है मौला अलीउल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर एक हदीस सुना रहा हूं, तिरमिज़ी में हदीस पाक आई, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ही हदीस है। आका अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम मौजूद थे, उनमें मौला अलीउल मुर्तजा भी मौजूद थे। आका अलैहिस्सलाम हर एक के लिए दुआ कर रहे थे, ए अल्लाह इन पर रहम फरमा, इन पर रहम फरमा और इन्हें हक की तरफ चला। दिगर सहाबा किराम, मैं अब नाम लिए बगैर आगे बढ़ रहा हूं, क्या हर एक के लिए दुआ कर रहे थे, अल्लाह इन पर रहम फरमा और इन्हें हक पर चला। सामने आ गए मौला अलीउल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। आपने फरमाया, ए अल्लाह इन पर रहम फरमा
और हक को उधर चला जिधर अली जाए। फर्क समझे? बाकियों के लिए दुआ की कि जिधर इन पर रहम फरमा और इन्हें हक अता, यानी हक को इनकी तरफ चला। जब अली की बारी आई तो फरमाया हक को उधर चला जिधर को अली जाए। तो बाज लोगों का वजूद हक हो जाता है। ऐसे ही हसनैन करीमैन, ऐसे ही सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा, ये बात आप मुकदमा समझ गए कि ये हक पर थे, तो माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, क्या सिर्फ यही हक पर थे? और इनके बरक्स आने वाले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो माज़अल्लाह जब हदीस सुना रहे थे कि ये फदक का बाग, ये नबी की विरासत नहीं होता। नबी कोई भी हो, वो जो भी माल छोड़ के जाता है, बोलिए वो क्या होता है? सदका होता है। तो क्या वो जब ये हदीस सुना रहे थे तो वो खता पर थे और उन्होंने माज़अल्लाह सैयदा फातिमा ज़हरा का हक छीन लिया? नहीं। आओ जरा इस पर भी अब सुन लो और बात को खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। बड़ी हदीस पाक, बड़ी बल्कि हदीस भी नहीं, मैं आपको कुरान मजीद की तरफ लेकर जाता हूं। वो वाकया याद कीजिए जरा, मैं अब आपको समझाने लगा हूं। यहां तक समझ गए कि सैयदा फातिमा ज़हरा क्या है? ऊंचा बोलिए, क्या है? हक पर। अब अगला जरा जुमला सुने, हमारे पास टाइम तो बिल्कुल कोई तकरीबन 4 मिनट रह गए, मैं इसी पर बात को खत्म कर देता हूं। अब जरा सुनिएगा, बड़ा मारूफ वाकया है कि आका अलैहिस्सलाम मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे, तो रस्ते में आपकी हिफाजत के लिए कौन था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। और जब गार में चले गए, बाहर कुफार आ गए, तो अब जरा कुरान मजीद की जुमले सुनिए। कुरान मजीद कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इल्ला तंसुरुहु फ़क़द नसरहुल्लाह। लोगों, अगर तुमने मेरे रसूल की मदद न भी की, मैं उनकी मदद के लिए काफ़ी हूँ। पहले भी मैंने उनकी मदद की। कब की? फरमाया इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू, जब गार में मेरे महबूब को माज़अल्लाह नुकसान पहुंचाने के लिए कुफार आ गए थे ना, उस वक्त भी मैंने मदद की। कौन कह रहा है? अल्लाह ने मदद की। कैसे? सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे। गार में कितने थे? 2 थे। इसका मतलब है 2 के अलावा वहां कोई और नहीं था। तो भाई 2 कौन थे? या मोहम्मद मुस्तफ़ा थे या सिद्दीक़ अकबर मुबारक की पाक ज़ात थी। अब आप देखें, कुरान जिसका जिक्र करे वो हक नहीं तो और क्या है? अभी जरा सुनते जाइए, अभी बात खत्म नहीं हुई, जरा आगे चलें। कहते इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब मेरे महबूब ने अपने सहाबी से कहा। गार में कितने थे? 2। जब रसूल ने किससे कहा? अपने सहाबी से कहा। ये वो जुमला है जिससे मैं आपको बता रहा हूं कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1.25 लाख सहाबाए किराम थे। हर एक की सहाबियत का डंका हदीसे पाक से बजता है। सहाबा की जमात के सरबरा सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का डंका कुरान से बजता है। तो जिसकी सहाबियत की ऑथेंटिसिटी कुरान बयान करे, उसका जुमला हक नहीं होगा तो और क्या होगा? अच्छा आगे चलें, अभी भी बात खत्म नहीं हुई। कहते ला, क्या कहा? ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। जब वो दोनों गार में थे तो मेरे महबूब ने अपने सहाबी से कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, ए मेरे महबूब, ए मेरे दोस्त, गम ना कर, हमारे साथ कौन है? हम दोनों के साथ कौन है जी? अल्लाह। अच्छा, एक होता है गम, एक होता है दुख। बोलिए क्या? एक होता है गम और एक होता है, यहां तहज़न दुख का जिक्र नहीं, गम का जिक्र आया। याद रख लो, दुख हमेशा दूसरों का होता है, अपने का हमेशा गम होता है। बोलिए क्या? अपने का हमेशा गम होता है। कुर्बान जाऊं आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सिद्दीकियत पर कि आका के अल्फाज को कुरान में बयान किया कि उस लम्हे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख नहीं था, अपने यार गार सिद्दीक़ अकबर का गम था, हुज़्न था। बताइए, मुस्तफ़ा जिसका हुज़्न करे वो हक होगा या बातिल?
बोलिए बोलिए क्या होगा? हक होगा। फिर वअंज़ल अल्लाह सकीनतहु अलैहि, बस अल्लाह ने फिर उन पर सुकून नाजिल कर दिया, वो चले गए अंदर। ये अच्छा, अब यहां पर बात बड़ी तवज्जो तलब है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पूरी ये जो आयत है ना, इसमें टोटल 4 सीगे हैं। मैं बड़े इख्तिसार के साथ, अगर 2 मिनट ऊपर हो जाए तो आज मुझे माजरत, मुझे माफी, ताकि मैं मौजू ये मुकम्मल कर लूं। कहते हैं इज़ अखरजहुल लज़ीना कफ़रू, नंबर 1 सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, ये और अगला ला तहज़न इन्नल्लाह माना। टोटल ये 4 जुमले हैं, 4। इनमें से जो पहले 3 हैं उनमें माजी के साथ बात हुई, इज का मतलब है ये माजी का सीगा है। लेकिन जब बात आई ना ला तहज़न इन्नल्लाह माना, तो उस जुमले में माजी का लफ्ज नहीं आया बल्कि हाल का जिक्र आया। और हाल, और ये पिछले जुमले खुदा की जुबान के थे, ये वाला जुमला मोहम्मद मुस्तफ़ा की जुबान से आया। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से इसलिए आया ताकि मैं जब कहूं सिद्दीक को कि मेरे सिद्दीक, गार में परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारे साथ हमारा खुदा मौजूद है, तो उसी लम्हे मेरी बात पर सिद्दीक सादिक बन के मेरी गवाही भी दे दे कि हाँ अल्लाह हमारे साथ मौजूद है। तो सिद्दीकियत का टाइटल इस आयत के जरिए भी सैयदना सिद्दीक अकबर को मिला। जिस जात को सादिक होने का टाइटल कुरान दे, हम उनके बारे में कहें उनसे गलती हो गई, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, उन्होंने हक छीन लिया, उन्होंने ये कर लिया वो कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं। याद रख लो, जब एक ही जुमला याद रखो, मैंने पूरी दलाइल दे दिए कि तबकात 3 होते हैं। ये वो तबका है जो हक वाला तबका है, खा सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा हो, ये हमारा अकीदा है, ये अहले सुन्नत का अकीदा है। इधर जाएंगे तब भी खसारे में, इधर जाएंगे तब भी खसारे में। हक बात यह है कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा जब मांग रही थी तो वो भी हक पर थी, जब आगे से हदीस सुनाई तो वो भी हक पर मबनी थी, और मामला खत्म हो गया। अगर ये मामला खत्म ना हुआ होता तो आओ आखिरी रिवायत अर्ज कर रहा हूं, और ये रिवायत भी कौन लाए? सैयदना इमाम अबू जाफर मोहम्मद अल बाकिर, इमाम मोहम्मद बाकिर, वो अपने बाबा सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रिवायत करते हैं। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रिवायत करते हैं कि एक शख्स मौला अलीउल मुर्तज़ा की बारगाह में आया। ये देखें, पोता अपने बाप से, बाप अपने बाप से, मौला अलीउल मुर्तज़ा आप मिंबर पर, तो किसी ने सैयदना शेखैन के बारे में सवाल किया, यानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सवाल किया। आपने जवाब नहीं दिया। मौला अलीउल मुर्तज़ा मिंबर पर तशरीफ लाए, मिंबर पर तशरीफ लाए और जरा सुने। कहते हैं ए बारी ताला, अब जरा मैं वो लोग जो मौला अलीउल मुर्तज़ा से मोहब्बत करते हैं, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फख्र से कहते हैं हमारा ईमान मुकम्मल ही नहीं होता जब तक अली की मोहब्बत का चिराग दिल में ना जले। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसके बरक्स हम माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह सहाबा किराम की बेअदबी करके अपने ईमान का बेड़ा गर्क करें। नहीं, ये मुस्तफ़ा का गुलदस्ता है। बोलिए क्या? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलदस्ता है। अब मैं तो चूंकि मौला अलीउल मुर्तज़ा से मोहब्बत और आपके दर की नौकरी और चाकरी को अपने ईमान की चमक दमक समझता हूं, मैं मौला अलीउल मुर्तज़ा की दुआ पढ़ रहा हूं, आप भी मेरे साथ शरीक हो जाएं। आप क्या कहते हैं? ए बारी ताला, हमें उसी तरह सीधी राह पर कायम रख जैसे तूने खुलफाए राशिदीन को सीधी राह पर कायम रखा। जैसे उन्हें हिदायत पर रखा वैसे हमें हिदायत पर रख। अच्छा, जैसे उन्हें सालेहियत पर रखा वैसे हमें सालेहियत पर रख। दुआ मुकम्मल हो गई। बाद में वो शख्स आया मौला अलीउल मुर्तज़ा के पास और आकर अर्ज करने लगा, आपने ये जो लफ्ज बोले खुलफाए राशिदीन, इससे मुराद कौन है? जुमले जरा सुनिएगा, इससे मुराद कौन है? तो आपने जुमा के खुतबे में खुलफाए राशिदीन का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। बाद में जब उसने सवाल किया तो आपने वाज़े तौर पर फरमाया कि इन खुलफाए राशिदीन से मुराद सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है या उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। और आपने ये बात नहीं होगी जो आप सुन रहे हैं पहली मर्तबा, ये पहली मर्तबा आप सुन रहे होंगे जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सैयदना
अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कैसे हक पर मबनी थे कि जब आपका दौर आया तो मुनकरीन ज़कात उठे तो आपने उनके फितने को कुचला। नंबर 2, लोग मुर्तद होने लगे, कबाइल मुर्तद होने लगे, आपने उस फितने को कुचला। नंबर 3, आपके दौर में झूठे नबी पैदा होने लगे, आपने उस फितने को कुचला। और आपके जमाने में कुरान मजीद पहली मर्तबा किताब की सूरत में जमा हुआ। जब ये सारे जिक्र करने के बाद, वो जो मैंने कहा ना पहली दफा सुनेंगे, वो ये जुमला है। अब जरा सुनिएगा, हजरत मौला अली अल मुर्तजा ने उस सवाल करने वाले बंदे को मौला हजरत अबू बकर सिद्दीक के ये सारे कारनामे बयान करके मौला अली अल मुर्तजा ने फरमाया, उनके इन कारनामों की वजह से मैं अबू बकर को भी शेखुल इस्लाम समझता हूं, उमर फारूक को भी शेखुल इस्लाम समझता हूं। तो इस्लाम के पहले शेखुल इस्लाम, बोलिए क्या, इस्लाम के पहले शेखुल इस्लाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी हैं, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की भी ज़ात है। ये मैंने आपके सामने बड़े इख्तिसार के साथ बात रखी कि अपना अकीदा, नौजवान भाई अपना अकीदा इत्तेदाल पे रखें और कभी ज़िग-ज़ैग न हो, इधर उधर न जाए, हमारा ईमान बर्बाद हो सकता है। सोशल मीडिया की यलगार है, वहाँ व्यूज़ के चक्कर है, वहाँ डॉलर्स की गेम है, वहाँ जब तक आप इख्तिलाफी वीडियो ना बनाए उस वक्त तक आपको व्यूज़ नहीं मिलते। ये पेट का धंधा है, पेट का धंधा और है, ईमान का धंधा और है। वो तो धंधा नहीं है, वो तो हक है। हाज़रीन मोहतरम, हक ये है कि हमेशा इस नुक्ते पर और अकीदे पर रहें कि सहाबा भी हक पर थे, हुजूर की पाकाल भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस हक और सदाकत के साथ कायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।